ओके सो लास्ट वीडियो में आपने LR0 पूरा देख लिया था, स्टैक वैलिडेशन वगैरह सब कुछ हमने करके देख लिया था. नाउ इन टुडेज वीडियो विल स्टडी दी SLR1 parser. We'll study SLR1 parser. But before studying the SLR1 parser, we have to see certain concept, like what are the problems we can have in the LR0 table, right? So problems in LR0 table, although these problems can be in the SLR1 parser also, but problems की बजाय इसे हम कर लेते हैं conflicts. So basically when we draw the LR0 table or any LR table, so there is a possibility of two types of conflicts. So first type of conflict is called as shift and reduce conflict. And the second type of conflict is called as reduce and reduce conflict. Now, what is the meaning of that? Suppose there is a state I2, and in I2, I have got the production, say this, and apart from that, I have got the production this, right? We are taking example of this, right? Now, what is the problem? In this particular state, if I look at the I2 state, then one production, the first production is being reduced, right? And the second production is in the stage of shift, which means on seeing A, I will reach to some state, maybe I3, and this production will become like this, right? So what kind of entry I'm going to do? What kind of entry I'm going to do? On the state number 2, LR0 की बात कर रहे हैं. On the state number 2, suppose करो यहाँ पर आपके पास ये टर्मिनल्स हैं एक्शन स्टेट में, एक्शन वाले पार्ट में ये टर्मिनल्स हैं आपके पास A एंड डॉलर. तो आपने क्या करना है, S टेंड्स टू AA डॉट, ये वाला प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है, तो मान लेते हैं इसका प्रोडक्शन नंबर 1 था, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है. So what will you write? R1 and R1 at both terminals. Fine. अब I'm so sorry. ये है. This is the production. Fine. तो अभी क्या हो रहा है? And after shifting, this will become like this. अब क्या हो रहा है? Second production S2 state में shift है, which means on seeing small a, you are reaching to the I3 state and shifting to the I3 state, and your production become like this. So what kind of entry you are going to do in a small a? At a state number 2, on seeing a small a, you are reaching to S3, which means you can see that in a cell A, इस वाले intersection को देखिए, there are two entries. One entry is for reduction, another entry is for shifting. This kind of conflict is called as shift and reduce conflict. So if in LR0 table, you are getting shift and reduce conflict in a particular cell or in a number of cell, then your grammar cannot be parsed by LR0 parser. So this is the first type of conflict. Now look at the another conflict. Suppose करिए आपके पास जो conflict है इस बारी वो reduce and reduce है, तो हम production को change करते हैं. Let's take example. I2 state में आपका first production तो ये reduce हो रहा है और second production suppose करिए ये reduce हो रहा है, right? There is no shift production after I2. तो आप ये देख रहे हो I2 state में दो production reduce हो रहे हैं, 1 and 2. अब आपकी टेबल कैसी बनेगी? This is state number 2. ये आपका टर्मिनल A है और ये डॉलर है आपका, राइट? अब स्टेट नंबर 2 पे पहला प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो यू विल राइट R1 R1. अब इसके बाद आपका जो R2 प्रोडक्शन है ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो अब आप क्या लिखोगे? R2 भी I2 स्टेट में ही लिखोगे, सेकेंड स्टेट में लिखोगे, which means there are two reduce entry in a particular cell or more than one cell. This conflict is called as reduce and reduce conflict, and this conflict is called as shift and reduce conflict. So in short,
if your LR0 table is having shift and reduce conflict, or reduce and reduce conflict, or both conflicts, then that grammar cannot be parsed by LR0 parser, right? Now, to improvise the table, to improvise the LR0 parser table, SLR1 has one improvement in the reduction moves. LR0 में आप रिडक्शन मूव को हर एक टर्मिनल पे लिखते हो, तो इसको इम्प्रोवाइज करा गया और इम्प्रोवाइज करके LR1 में एक मॉडिफिकेशन किया गया। अब क्या मॉडिफिकेशन किया गया? अच्छा, ये मॉडिफिकेशन करने का पर्पस क्या था? सो दैट ये जो कंफ्लिक्ट वाला पॉसिबिलिटी है ये कम हो जाए। फाइन, तो क्या मॉडिफिकेशन किया गया? मॉडिफिकेशन ये किया गया, द रिड्यूस एंट्री, the reduce entry in the table will be done under the follow set. Follow of what? Follow of non-terminal. ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्शन है, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन ये है, ठीक है, तो इस वाले प्रोडक्शन की एंट्री में कहां करूंगी? फॉलो ऑफ ए में करेंगे। अगर ये प्रोडक्शन है तो इस प्रोडक्शन के रिडक्शन की एंट्री हम क्या कहां करेंगे? फॉलो ऑफ एस में करेंगे। ब्लाइंडली हम सारे टर्मिनल्स पर इसको नहीं डालेंगे, हम केवल कहां डालेंगे? फॉलो ऑफ एस में डालेंगे इसको, ठीक है। तो अब जो टेबल हमने LR0 में बनाई थी उसको हम इम्प्रोवाइज करते हैं। फाइन, तो मैं टेबल एक बार रीड्रॉ कर रही हूं। सबसे पहले मैं ग्रामर लिख रही हूं। ग्रामर हमारी ये थी, और एक आपने इसका ऑगमेंटेड प्रोडक्शन बनाया था, ये ग्रामर थी आपकी। अब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी टेबल क्या थी? एक्शन पार्ट में आपके पास ये टर्मिनल्स थे एंड गो टू पार्ट में आपके पास ये नॉन टर्मिनल्स थे। टोटल स्टेट्स आपकी बनी थी, टोटल स्टेट्स आपकी बनी थी 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी स्टेट्स बनी थी टोटल, ठीक है। और इनकी एंट्रीज देख लेते हैं। यहां पर था आपका S3, S4 एंड देन 1, 2, उसके बाद आपका ये एक्सेप्टिंग था, एक्सेप्ट था। देन इन I2 स्टेट वी हैड S3, S4, और यहाँ पर आपके पास, सॉरी, यहाँ पर आपके पास 5 था, ये भी गलत किया मैंने, 2 and 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेट में भी था S3 and S4 शिफ्टिंग था, और ए के नीचे आपकी स्टेट 6 थी। अब फोर्थ स्टेट से आपके रिडक्शन शुरू हुए थे, और ब्लाइंडली आपने जो रिडक्शंस थे वो सब पर लिखे हुए थे। ये आपकी टेबल थी, ये LR0 टेबल थी आपकी। ओके, अब हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, इस टेबल को इम्प्रोवाइज करना है और इसे SLR1 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले SLR1 में आपके पास बनाने के लिए आपको केवल किस पार्ट में चेंज करना है? रिडक्शन वाले पार्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब रिडक्शन वाले पार्ट में चेंज करने का मैंने आपको क्या बताया? रिडक्शन की एंट्री आपको वही करनी है, प्रोडक्शन का जो आपका नॉन टर्मिनल होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नॉन टर्मिनल होगा, उसके फॉलो में इस प्रोडक्शन की एंट्री करोगे आप। तो हर एक प्रोडक्शन का हम क्या कर लेते हैं? फॉलो निकाल लेते हैं। सो अगर मैं फॉलो ऑफ एस निकालूं, इट इज अ स्टार्टिंग सिंबल, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? डॉलर आएगा। राइट हैंड साइड पर कहीं नहीं आ रहा है। अब हम निकालते हैं फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो ए को कौन फॉलो कर रहा है? ए, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए में क्या क्या आएगा? ए कॉमा बी, ये आएगा आपका, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? एंट्री को बहुत ध्यान से देख करके करना है। अच्छा, एक और चीज, ए इज अ लास्ट सिंबल ऑल्सो, तो यहाँ पे डॉलर भी आएगा। फॉलो ऑफ ए, इस वाले ए को ये ए फॉलो कर रहा है और ये लास्ट सिंबल है, सो फॉर दिस फॉलो ऑफ एस विल बी देयर, तो यहाँ पर डॉलर भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस
टेबल को ठीक कर रहे हैं. सो A, B, डॉलर एक्शन पार्ट हो गया. दिस इज योर गो टू पार्ट. ये आपका गो टू पार्ट हो गया. स्टेट नंबर 0, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3. अब स्टेट नंबर 3 तक तो आपने सिर्फ शिफ्ट एंट्रीज करी हैं, तो ये चेंज नहीं होंगी. ठीक है, तो S3, S4, 2, 1 यहां पर एक्सेप्ट होगा. S3, S4, S3, S4 यहाँ पे 5, यहाँ पे 6. अब रिडक्शन एंट्रीज में चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, तो हम इनकी स्टेट्स बना लेते हैं. 4, 5 एंड 6. ये स्टेट्स बन गई हमारी. ओके, नाउ अब हमें एंट्री किसकी करनी है? R3 की. R3 इज A टेंड्स टू B. इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्शन है, इसका रिडक्शन फॉलो ऑफ ए में जाएगा. फॉलो ऑफ ए में जाएगा. व्हाट इज फॉलो ऑफ ए? AB डॉलर. तो फिलहाल R3 की एंट्री तीनों में होगी. अब आ जाइए, सेकेंड एंट्री है R1 की. R1 मीन्स S टेंड्स टू AA. इसका मतलब फॉलो ऑफ S में इस वाले रिडक्शन की एंट्री होगी. व्हाट इज फॉलो ऑफ S? डॉलर. तो R1 की एंट्री हम यहां करेंगे. LR0 में देखिए, R1 की एंट्री हमने तीनों में करी है ब्लाइंडली, लेकिन SLR1 में, ये SLR1 का टेबल है, SLR1 में R1 की एंट्री हम केवल कहां करेंगे? फॉलो ऑफ S में. और फॉलो ऑफ S क्या है? डॉलर है. तो यहां पर हमने उसकी एंट्री कर दी. अब आ जाइए R2. R2 इज A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A. तो फॉलो ऑफ कैपिटल A में आप इसकी एंट्री करेंगे. तो फॉलो ऑफ कैपिटल A तीनों टर्मिनल्स को कवर कर रहा है. So this will be the table of SLR1. So you can see that these two cells are blank, which means there are some chances for the reduction of conflict. ये दोनों सेल ब्लैंक हो गए हैं, तो ऑब्वियसली SR और RR conflict इन दोनों सेल्स पर होने के चांसेस कम हो गए हैं. फाइन. सो जितने ज्यादा आपके पास ब्लैंक एंट्रीज होंगे, आपका जो पार्सर है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज कंफ्लिक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा यहाँ पर कम हो गए. सो आई होप द टेबल ऑफ SLR1 is clear to everyone, and you can also jot out the difference between LR0 and SLR1. So as such, there is no difference between LR0 and SLR1 except one. When you are designing the table of parser, then the reduction move in the SLR1 parser will be kept only in the follow of the production. While in case of LR0, we write the reduction move to all the terminals of the action part, right? So in the next video, we will see the some examples of the grammar, and we will check whether the grammar is LL1, LR0 or SLR1 or not.